क्या हो गया, नींद आ रही है बेबी? आवाज ठीक है? हेलो, नींद आ रही है क्या बेबी? हाँ, इतने ज्यादा डाउन डाउन क्यों हो फिर? या मुझे आवाज सही नहीं आ रही? हेलो, आवाज ठीक आ रही है तुम लोगों को? चलो, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। और कुछ और कुछ? So basically, in broad, we have talked about shape and size of the cell. Okay, one model of the plasma membrane. और क्या पढ़ा था? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस, कुछ और? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। So basically we have started with the transport. तो आज की क्लास में हम पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को गो थ्रू करेंगे. वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सीलिया एंड फ्लैजिला एंड वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और जेनेटिक मटेरियल. ठीक है बेटा? लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर. You don't know the answer? Sorry? Okay. What about you, beta? Don't know the answer? You. चलो. So, the cell capable of changing shape. किसको लगता है अमीबा आंसर है? किसको लगता है WBC आंसर है? किसको लगता है ये आंसर है? वेरी गुड. ठीक है जी. They both have the capability to change their shape. Coming back to the next question. Go through with the question. Which of the following will have good quantity of cellulose? सेल्यूलोज कुछ कहीं तो कुछ तो पढ़ा था. आई डोंट नो. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आंसर इज ए? हाउ मेनी ऑफ यू से आंसर इज बी? बी. हाउ मेनी ऑफ यू आंसर इज सी एंड डी? आंसर इज ए नॉट डी. डी जो होता है बेटा वो पल्प या फिर जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है रबर ट्री से उससे होता है, राइट? बट अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है अपना वुड. और हमने बोला था कि जो प्लांट होते हैं उसके सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose. Hence, the paper will have good quantity of cellulose. Next question. No. Light. Let him come. किसी लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, आई थिंक इस वाली का. तो विजिबल ही नहीं हो रहा क्वेश्चन. एक बार कहाँ से बंद होगी इसका? हाँ, ये वाली का है शायद. किसी का तो है इसका चाहे इसका. अभी ठीक है? भैया फैन चला दो भाई.
ठीक है, चलो अब बताओ, अभी दिख रहा है? हाँ, अब बताओ. So size is an important consideration of the cell. A smaller cell is efficient. And the options are given. How many of you think the answer is A, B, C? Raise your hand जिसको C लग रहा है. D. Answer is A. Why so? Size is the assertion is saying size is an important consideration of the cell. Means मेरे पास 2 सेल हैं और मुझे बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है या फिर किसकी क्या प्रॉपर्टी है. तो क्या मैं साइज को कंसीडर कर सकती हूँ एज वन ऑफ द फीचर? यस, बिकॉज वी नो जो छोटा होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो बड़ा होगा वो कम एफिशिएंट होगा. हेंस ए इज द करेक्ट आंसर. ओके जी, कोई डाउट? नाउ विल स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट. Yesterday we talked about the structure of plasma membrane and we know that plasma membrane is made up of how many lipid layer? 2 bilayer. Are proteins also present? How many types of protein we have talked about? कौन सा? Okay, so everybody, the very first one is extrinsic, transmembrane and intrinsic or integral protein. Any doubt? पहले समझना है, पहले छापना नहीं है, पहले समझ लो. ठीक है. We also talked about the transport take place in 2 ways. One is active, another one is passive. If it is active, it is requiring the expenditure of energy. If it is passive, it is not requiring any kind of energy. Movement is just taking from higher concentration to lower concentration. ठीक है बेटा. अब बात आती है सिंपल डिफ्यूजन की. सिंपल डिफ्यूजन मीन्स द पार्टिकल is just crossing the plasma membrane. It can simply diffuse across the plasma membrane from its higher concentration to lower concentration. Is it clear? But there are certain particles which cannot cross the plasma membrane directly, which cannot cross the bilipid layer of the plasma membrane. Hence, there are some protein which are facilitating their diffusion. Hence, it is called as facilitated diffusion. Okay? कोई डाउट? पक्का? This one. In this, the movement of transport, the movement of molecule is taking place from lower concentration to higher concentration. Hence, it is requiring the expenditure of energy in the form of ATP. देखेंगे क्या होता है ये. ठीक है. तो सिंपल डिफ्यूजन देखो, movement of the particle from the area of higher concentration to the area of lower concentration विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. जैसे कि आपकी लीफ में स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का एक्सचेंज बस उनके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हो जाता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन along a concentration gradient in the presence of a facilitator protein or a carrier protein molecule. Facilitated diffusion. क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? No, from higher to lower. When? No, from lower to higher. If it requires energy, active transport. Clear है? Simple. They both are kind of diffusion. In this, the movement will take place from higher to lower. बताया तो था कि अगर किसी अमीर से गरीब को पैसे देने तो सिंपली दे देगा वो, क्योंकि उसके पास है, अगर उसका विल है तो. बट अगर किसी बेगर से किसी अमीर को देने हैं तो क्या करना होगा? जबरदस्ती करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी. वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सीन है. यहाँ पे क्या है कि उसको जाने के लिए दिस लेयर इज नॉट अलाउिंग, हेंस देयर इज अ प्रोटीन विच इज टेकिंग इट अवे. ठीक है जी, कोई डाउट? पक्का? जॉट इट डाउन. एज इट इज मत लिखा करो, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन वर्ड. इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इसको लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन. यू नीड नॉट टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट. एवरीथिंग इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक.
नो, आर पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव इफ इट इज रिक्वायरिंग एनर्जी. यहाँ कहाँ एनर्जी दिया? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. अगर आप एक्टिव हो इसका मतलब आपके पास एनर्जी है. अगर आप ऐसे डाउन से हो जाओगे तो इसका मतलब आप एनर्जी लेस हो गए, राइट? ऐसे रिलेट कर लो. क्लियर? शैल वी मूव अहेड? ये प्रोटीन है, जैसे कि वी नो आर phospholipid, our plasma membrane has phospholipid and protein as well. So the protein which is carrying something is the carrier protein. The transmembrane protein, suppose यहाँ से यहाँ तक का रास्ता बना दिया, चला गया, acting like a bridge, जो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउ कर देते, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको कैरी कर रहे हैं, कैरियर है वो. ठीक है जी, चले? नहीं, एक्टिव कहाँ हुआ बेटा? कहाँ पोटेंशियल लगा रहा है? वो बस एक रास्ता दे रहा है ना बेटा. यहाँ पे इसने बोला कि मैं अलाउ नहीं करूँगा तुमको जाने के लिए. इसने बोला कोई बात नहीं, तुम इधर ज़्यादा हो, ऐसा करो मैं तुमको रास्ता दे देता हूँ, चले जाओ. बस. एनर्जी लगी? नहीं लगी. यहाँ पे क्या था? कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर भी ट्रांसपोर्ट करना है. ठीक है जी, तो एनर्जी देनी पड़ रही है. क्लियर है बेटा? एनी डाउट? यहाँ देखो, ट्रांसपोर्ट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू: एक्टिव, पैसिव. ठीक है? आप अगर एक्टिव हो इसका मतलब आपके पास एनर्जी है. सिमिलरली अगर ट्रांसपोर्ट एक्टिव है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है? इधर बेटा, इधर पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि एक बैगर से एक रिच को दे रहे हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है जी? पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है. एक तरीका जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर रहा है ट्रांसपोर्ट इजीली, उसकी जो लेयर है लिपिड की वो अलाउ कर रही है. एक में इसको कैरी करने के लिए कोई फैसिलिटेटर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैरियर प्रोटीन. तो एक हो गया आपका बेटा सिंपली डिफ्यूज कर गया, सिंपल डिफ्यूजन. एक हो गया आपका बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है जी? अब ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को ट्रांसपोर्ट में? एक्टिव, पैसिव. पैसिव नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है बेटा? एवरीबॉडी? इसी को वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है. अरे आवाज का मुझे ही प्रॉब्लम लग रहा है कि तुम लोग को भी लग रहा है? सर बहुत ही ज्यादा एको हो रहा है. हो रहा है ना? अभी ठीक है कुछ? चले आगे बढ़ते हैं. हाँ जी बेटा. प्रीवियस ये वाली आवाज़ का कुछ तो है, बहुत ही ज़्यादा एको हो रहा है. मैंने ऐसे नीचे किया फिर भी गूंज रही है टाइप्स. ठीक है बेटा? क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज जस्ट द समरी ऑफ व्हाट इज रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड.
It is the transport of any solid which cannot pass the plasma membrane, basically which cannot cross the lipid layer. आप देख सकते हो ये है आपकी लिपिड की लेयर, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए प्रोटीन इज देयर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म इज एडेनोसिन ट्राइफॉस. ठीक है बेटा, आपने नर्व सेल सुना है? आपने नर्व सेल सुना है? आपका नर्व सेल क्या कैरी करता है? सिग्नल्स कैरी करता है. जब वो सिग्नल्स कैरी करता है ना तो उसमें आयन का चेंज आता है. ठीक है, उस आयन के चेंज के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. तो वही लिखा है, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयन अक्रॉस द एक्सॉन इन अ न्यूरॉन. एक्सॉन, ओ गॉड, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे तब हम एक्सॉन पढ़ेंगे कि न्यूरॉन के कौन से पार्ट को एक्सॉन कहते हैं. ये चीज़ क्लियर है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई कंफ्यूजन? पैसिव नो एनर्जी, एक्टिव एनर्जी. इट्स अ करेंसी. what kind of, what type means? इट्स अ केमिकल एनर्जी. आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही है, गूंज रही है जैसे. क्लियर है? आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट. अभी ठीक है आवाज? इज इट फाइन नाउ? हेलो, हाँ ठीक है, अभी ठीक है. हाँ हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट. ऐसे हो रही है देखो. हाँ, if we are talking about bulk transport, आप लोग इधर ध्यान दो बेटा. बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी बड़े पार्टिकल को अंदर लेना. ठीक है, सेल इज टेकिंग अ बिग पार्टिकल इनसाइड और इट इज टेकिंग समथिंग इन वेरी लार्ज अमाउंट. तो आपने अमीबा सुना है? अमीबा इज टेकिंग इट्स फूड इनसाइड. ठीक है, तो वो मान लो छोटा सा कोई बैक्टीरिया ले रहा है तो वो उसके लिए तो बड़ा ही है, बिकॉज अमीबा इज यूनिसेल्युलर. तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को जब किसी बड़े मॉलिक्यूल को हम इनटेक कर रहे हैं, व्हेन सेल इज इनटेकिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट, और टेकिंग समथिंग इन लार्ज अमाउंट इट इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट. तो इसमें क्या होता है, इसमें वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकता या फिर एनर्जी दे के भी नहीं काम चल रहा है. तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेकिंग समथिंग, इट इज मेकिंग इनवेजिनेशन, अपने आप को फोल्ड करके इनवेजिनेशन बना रहा है. हमने पढ़ा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फोल्डेबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को फोल्ड कर रहा है, इनवेजिनेशन बना रहा है. बेटा यहाँ पे ध्यान, लिखा एवरीथिंग इज देयर इन द बुक. यहाँ समझने आए हैं, लिख तो हम घर में भी बैठ के सकते हैं ना, बुक से लिख लो, काम खत्म. समझ लो, समझ लोगे तो लिखना इजी रहेगा. तो व्हाट इज हैपनिंग, अब दो चीज़ हो सकती है, या तो मुझे कुछ सेल के अंदर लेना है if I have to, or maybe I have to throw something out of the cell. So what is happening here, plasma membrane is folding itself. ये है एक लार्ज पार्टिकल जो कि सेल के अंदर आना है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हाथ तो है नहीं कि उसको पकड़ के अंदर ले ले, पैर तो है नहीं चल के पहुंच जाए. तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज मेकिंग सम फोल्डिंग. वो ऐसा विजुलाइज होता है कि फॉल्स फीट जैसा. ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सूडोपोडिया. सूडो मतलब ही होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. हाँ, मूवमेंट को नहीं, इस स्ट्रक्चर को, नॉट द मूवमेंट, द स्ट्रक्चर इज नोन एज. तो व्हाट इज हैपनिंग, अब यहाँ पे क्या हो, ये चीज अंदर आने वाली थी, इसने इन्वेजिनेशन बनाया तो इसको सराउंड कर लिया. ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस इन्वेजिनेशन को बड़ा करके ऐसे और इसको भी ऐसे बड़ा करके ये पूरा फ्यूज कर लेगा और एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा. इज इट क्लियर? पक्का? तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर बना, इट इज कैरिंग समथिंग. ठीक है,
किसी भी राउंड स्ट्रक्चर को हमने कह देते हैं सेल में वेसिकल, ठीक है जी। इफ इट इज कैरिंग फूड हम कह देंगे फूड वेसिकल। व्हाट इज हैपनिंग देयर? अ राउंड स्ट्रक्चर, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं है? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेसिकल। ओके, अब वो वेसिकल क्या हुआ? सेल का पार्ट हो गया। कोई डाउट इसमें? सेल एक सॉलिड पार्टिकल भी अंदर ले सकता है, सेल लिक्विड भी अंदर ले सकता है, ठीक है। सेल कैन टेक एनीथिंग इनसाइड। नहीं, इस राउंड स्ट्रक्चर को, इस राउंड, एनी राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल विच इज स्टोरिंग समथिंग, वी कॉल इट एज वेसिकल। वैक्यूल भी पढ़ेंगे आगे, वो भी एक वेसिकल ही है, ठीक है जी। No, 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 not larger than it. It is larger in size. It cannot cross the plasma membrane in either way. So plasma membrane is making invagination to take it inside. It is not necessary that it is larger than amoeba. The point is that it cannot cross the plasma membrane of the amoeba. Okay? वो प्लाज्मा अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो अंदर कैसे ले, तो उसने इन्वेजिनेशन बना दिया। क्या? So what is happening beta? To engulf it, to take it inside, it is making its invagination. ठीक है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के इसको सराउंड करने के लिए इन्वेजिनेशन ऐसा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज हैपनिंग? मुझसे पूछ, अगर बायो से रिलेटेड है और कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो ब्रेक में पढ़ लियो, मुझसे पूछ लो, ठीक है जी। तो this is called as, if cell is taking something inside by making invagination, it is called as endocytosis. Endocytosis. If it is taking solid particle, we call it as phagocytosis. If it is taking liquid, we call it as pinocytosis. इसीलिए इसको सेल ईटिंग और इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस वन, अब इसी तरीके से कुछ चीज़ें होंगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही होंगी और उसको बाहर फेंकना होगा। तो व्हाट इज हैपनिंग? सेल इज स्टोरिंग देम इन अ round bag like structure. In a round structure, again we call it as vesicle. Okay, this vesicle, you can see this is the vesicle, it is storing waste product. दोबारा समझाते, पहले इसको समझ लो फिर इसको भी समझा देती हूँ। So what is happening? Cell is storing the waste product in a round structure, we call it as vesicle. What will happen? The vesicle will fuse with the plasma membrane. यहाँ से फ्यूज हो गया, अब इसको देखो, ये ऐसे फ्यूज हुआ था, अब यहाँ से ये वाला पार्ट हट गया, तो यहाँ पे ओपनिंग बन गई, इट कैन बी थ्रोन आउट, ठीक है जी। इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस नहीं किया ना, ये वेसिकल बना के फ्यूज करके बाहर गया, एक्सोसाइटोसिस। ये जो पार्टिकल था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करके नहीं आया, ना कि किसी प्रोटीन को ऐसे क्रॉस करके आया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। कैसे क्रॉस करके आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट किया और उसको सराउंड कर लिया, एंडोसाइटोसिस। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। बाहर फेंक रहा है तो हम इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस और हम कहते हैं सेल वॉमिटिंग, ठीक है जी। कोई डाउट? देखो, large and complex molecules such as lipid droplet pass across the plasma membrane by bulk transport, या फिर pass across the plasma membrane, हाँ ठीक है चलो। एंडोसाइटोसिस, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। कोई डाउट है? इंट्रा मीन्स सेल के अंदर एक वेसिकल बन रही है, ठीक है। कैसे? बाय इन्वेजिनेशन ऑफ स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कैन बी फैगोसाइटोसिस,
cell eating, it can be pinocytosis, cell drinking. ठीक है जी. Exocytosis, it involves the fusion of membrane of the exocytotic vesicle. This vesicle which is carrying waste is called as exocytotic vesicle with the plasma membrane to extrude its content to the surrounding medium. कोई डाउट है स्टेटमेंट में किसी को? पक्का? तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, बल्क ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सो, एंडो. एंडो अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप, फैगो, पिनो. फैगो मीन्स, पिनो मीन्स, ठीक है. Bulk transport means it cannot directly cross the plasma membrane, hence it is making vesicle. How a vesicle? By invaginating small region of plasma membrane. Need not to write the entire statement, just make your notes like this ताकि time बचे. Bulk transport, exocytosis, endocytosis, phagocytosis, pinocytosis. क्या बन रहा है? इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेकिंग वेसिकल. यहाँ पे एक्सोसाइटोटिक वेसिकल इज फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है जी, कोई डाउट? पक्का? किसका फोन बजा? कीप योर फोन ऑन द साइलेंट. कोई डाउट है किसी को? एनीबडी, एनी डाउट? क्या है इसके नीचे? नहीं नहीं, क्लियर? कोई डाउट? चलिए, ओके. किस किस का सैटरडे स्कूल ऑफ रहता है? लकी पीपल. ऑनलाइन क्लास रहती है सैटरडे को स्कूल की? अच्छा जी. कैब से कौन कौन जाता है? कैब से? नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्कूल मतलब आई मीन कैब से फिजिक्स वाला कौन कौन आता है? ओनली 2. बाकी खुद से या फिर पेरेंट्स कैरी करने आते हैं? मेट्रो अकेले? कहाँ स्टे करते हो? सेक्टर 93. कौन सी मेट्रो है? तो बेसिकली यू गो टू एक्वा लाइन 51 देन. नाइस, कॉन्फिडेंट बच्चा है. और 52 से 51 कैसे चेंज करता है? वॉक वॉक वॉक. जाते वक्त तो मिलती नहीं, आते वक्त ही रहती है. तुम्हें लोग को मिलती है, या तो मुझे देख के ही नहीं बिठाते होंगे. बाकी सबको पेरेंट्स कैरी करने आते हैं. एक कितना टाइम लग जाता है? 45 मिनट्स तो लग जाता होगा आराम से ना? ज़्यादा लगता होगा, आराम से ज़्यादा लगता होगा. एक्वा लाइन की एक मेट्रो छूट गई तो दूसरी तो 7 मिनट बाद आती है. 5 मिनट बाद ही आती है. क्या? मेरी तो छूट ही जाती है, कभी कभी नहीं पकड़ पाती मैं. चलो बेटा, कमिंग बैक टू नेक्स्ट.
तो व्हाट इज हैपनिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला इज अ टेल जैसा स्ट्रक्चर, बड़ा सा है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। स्पर्म पढ़ा था 8th क्लास के रिप्रोडक्शन में, स्पर्म के पास द टेल सुना था, टेल, द टेल इज फ्लैजिला इटसेल्फ, ठीक है, इट्स द फ्लैजिला, ओके। जो फ्लैजिला होता है वो स्विमिंग लाइक मूवमेंट क्रिएट करता है, जो सीलिया होता है एक ओर लाइक मूवमेंट क्रिएट करता है। ओर मतलब चप्पू बोलते हैं उसे, नाव जिसे चलती है, दैट, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दे बोथ आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ही करवा रहे हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर का काम है कि मूवमेंट ही कराना। हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सीलिया कंपैरेटिवली स्मॉल है, आपको दिख भी रहा होगा कि फ्लैजिला से स्मॉल है और ज़्यादा नंबर में होता है। फ्लैजिला जो है ऑपोजिट है, सीलिया से बड़े हैं और कम नंबर में है, ठीक है, देख सकते हो। सीलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक और कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। मान लो एक सेल यहाँ पे पड़ा है तो उसकी फ्लूइड जो है उसको बस मूव करने में और की तरह, जैसे पानी, नाव चाहते हैं ना, पानी को मूव करा रहा है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, सेल को मूव करने में, जैसे कि स्पर्म, स्पर्म का मूवमेंट, ठीक है जी, कोई डाउट? The size, the type of movement, the number. हाँ, larger in number, smaller in size, movement like oar, ठीक है जी। फ्लैजिला larger in number, sorry, smaller, less in number, larger in size, movement swimming like movement. So सिंपल सी बात, सीलिया एंड फ्लैजिला दो स्ट्रक्चर हैं। नंबर लार्जर स्मॉलर, साइज लार्जर नहीं लार्जर, ठीक है। नो नीड टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट, ट्राई टू मेक योर नोट्स इन दिस वे, इट विल हेल्पफुल, टाइम बचाएगा आपका और आपको हेल्प करेगा स्टेटमेंट लिखने की आदत डालने में। अगर स्टेटमेंट छापो फाई करोगे तो आप फिर एग्जाम में लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। आप लोगों में से किस किस का स्कूल दिल्ली रीजन में आता है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एमवीपीपी? दिल्ली दिल्ली दिल्ली, कुछ होंगे जो नोएडा में, कुछ होंगे जो दिल्ली, नवड्डा वाले नहीं, दिल्ली वाले। ऑल ऑफ यू डू वन थिंग, घर जाना, अगर इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो जस्ट गो थ्रू विद इट वंस। NSCJS बताया था, हाँ, yes, so basically it is an exam which has various levels. When you qualify them you represent India, okay, you will not represent yourself, you will represent India, ठीक है जी। बाकी तो स्कूल लेवल एग्जाम्स हैं, आई थिंक आपके स्कूल कराते ही होंगे। NSO NSTSC कराता है, दैट इज NTSC NSTSC, अच्छा IPM नहीं, IOM करवाता है, IOM भी होता है, IMO भी होता है, दोनों होते हैं, करवाता है। मतलब ये बेसिकली ये वाले सिल्वर जोन वाले एग्जाम है, IOS IOM सिल्वर जोन वाले एग्जाम है। किस किस को मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैथ्स में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इंटरेस्ट, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार देखना, ठीक है। किस किस को बायो में भी इंटरेस्ट है वो ये भी देख लेना, ठीक है। जबरदस्ती मैं आपका दिल खुश रखने के लिए थोड़ा सा हाथ, नहीं, इंटरेस्ट अपना अपना होता है, बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है।
इक्वली इम्पॉर्टेंट है, 10th तक तो सबके सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हर डॉक्टर यही बोल देता कि मुझे बायो पसंद ही नहीं है ना, तो ना कोरोना की वैक्सीन बनती, ना हम आराम से यहाँ पढ़ रहे होते। ठीक, डॉक्टर नहीं काम करता, जिसने बायो लिया होगा वही तो करा होगा उस पर काम। NSCC जिसको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, NSCP जिसको फिजिक्स बहुत पसंद है, NSCA जिसको एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है। NSEA जस्ट गो थ्रू विद इट। इनका इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एक बार जाके थोड़ा सा आइडिया लो, ठीक है, क्या पता इंटरेस्ट आए। बिकॉज दिस इज द एज, जो भी आप 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, द सिलेबस इज इक्वली, ठीक है, नॉट इन क्वांटिटी वाइज, ठीक है, जो क्वेश्चंस वाइज भी नहीं, जो सिलेबस है। इफ यू आर रीडिंग सेल इन द 9th इट इज इन 11th, टिश्यू इज इन 9th इट इज इन 11th, सेम आपका फिजिक्स के साथ भी यही पैटर्न है। तो 9th और 11th, अगर 9th को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया तो 11th बहुत स्मूथ हो जाएगी उन बच्चों के कंपैरिजन में जो कभी भी ऐसे कोचिंग्स में नहीं गए होंगे। तो एनीवेज यू विल बी एट लाइक ऑलरेडी 1-2 रैंक आगे ही रहोगे उनसे। तो 2 दिन के लिए आते हो, अच्छे से आओ, पूरी एनर्जी के साथ आओ। सैटरडे जिनका वीक ऑफ उनको तो और एनर्जी के साथ आना चाहिए, जिनको स्कूल जाना होता है थोड़ा ठीक है उनके लिए है डिफिकल्ट, बट स्टिल ओनली 2 days, ठीक है। NSCJS तो बेसिकली बेटा ये सारे एक ही लेवल के, ये सारे जो हैं एक ही जैसे एग्जाम है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनका एज कैटेगरी इसमें फॉल नहीं करता। NSCJS इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एवरीथिंग इन वन पेपर। बट देर आर किड्स जिनको फिजिक्स बहुत समझ में नहीं आती, मे बी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी, दे कैन राइट NSCC। बहुत से होंगे जिनको केमिस्ट्री भी नहीं समझ में आती, फिजिक्स भी नहीं आती, बायो अच्छा लगता होगा, NSCB। बहुत से होंगे जिनको फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों अच्छा लगता है। यू कैन अपियर फॉर 2 एग्जाम्स साइमल्टेनियसली, बट यू कैन नॉट अपियर फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी साइमल्टेनियसली, ठीक है, क्लियर है जी। तो एक बार जाके देखो, जरूरी नहीं है कि क्वालिफाई हो ही जाए, ठीक है, बट अपियर करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या पता समझ में ही आ जाए, अपियर हो ही जाए, अपियर करके क्वालिफाई हो ही जाए। जरूरी नहीं है कि क्वालिफाई हो ही जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस नॉट द कंटेंट वाइज, डिफिकल्ट इन द सेंस रीजनिंग वाइज, क्योंकि अभी तक की हमारी आदत सोचने वाली आई ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन आया ही नहीं है, ठीक है। चीज़ों को बस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डक 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 डक, लिख दो। अब वो नहीं, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, ठीक है जी। थोड़ा सा रीजनिंग होगी क्वेश्चन में, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आता होगा आपको, पढ़ा होगा, बट अटेम्प्ट कैसे करना है वही नहीं समझ में आएगा। बहुत ज़रूरी है इसीलिए कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही यही है। मैं अगर आपको अभी बोल दूंगी कि वाटर के बारे में लिखो, थीसिस लिख दोगे, पानी ये वो, बट अगर आपको बोला जाए मॉलिक्यूलर वेट निकालो, अगर कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड अटेम्प्ट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है। सब्जेक्टिव ज़रूरी है, एग्जाम लेवल के लिए ज़रूरी है, बट ऑब्जेक्टिव ये ओपन करते हैं थिंकिंग पावर, ठीक है जी। तो जाके थोड़ा सा आज इन एग्जाम्स के बारे में गो थ्रू करना, देखना क्या है, ठीक है। चलो जी, नाउ कमिंग बैक टू सेल वॉल, कल ही पढ़ा था, एडिशनल कवरिंग है, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स, present in plants. If present in plants, it is made up of cellulose. If present in bacteria, it is present in bacteria anyways, made up of peptidoglycan. In fungi, it is made up of chitin. Chitin. What is its role? It provides support and shape and rigidity. अब ये मेरा बैक्टीरियल सेल है, ये उसका सेल वॉल हो गया, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो बीच का स्पेस है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ये एक नया चीज़ आज हमने सीखा, ये हम सब कल पढ़ चुके थे, ठीक है जी, पक्का।
बट आर यू गाइज एंजॉइंग द सेशंस हियर? आने का मन करता है, जबरदस्ती भेजा जाता है? किस किस को जबरदस्ती सुबह सुबह उठाया जाता है, उठो जाओ? कौन बोला ये? पहली बार 6:30 बजे उठा? वेरी नाइस। यस। वी आर यूजिंग दिस टर्म फॉर बैक्टीरिया। पेरिप्लाज्म का मतलब ही होता है, बैक्टीरिया में एक्चुअली बहुत सी और चीज़ें होती है जो हमें अब भी नहीं पढ़नी है, ठीक है? इसीलिए बस इट इज़ मेंशन इन योर बुक, बता दिया, नहीं तो ये बताया भी नहीं जाता। ठीक है जी, शैल वी मूव अहेड? व्हाई सो? ये सब तो कल ही पढ़ा था, कल ही लिखा था। आज एक चीज़ और पढ़ेंगे। रुक जाऊँ? कहाँ जा रही हूँ? मैं तो पढ़ा ही रही हूँ। चलो, एक यंग प्लांट है, उस क्या लिखना है बता, मुझे बता। एक यंग प्लांट है, वो ज़्यादा थिक होता है कि एक ओल्ड एज प्लांट? ओल्ड एज प्लांट। बिकॉज जो यंग प्लांट होता है, ठीक है बेटा, उसमें अभी ग्रोथ पूरी हुई नहीं है। जब एक ओल्ड एज प्लांट होगा उसमें ग्रोथ हो जाती है, तो ग्रोथ होती है तो एक और चीज़ होती है कि नंबर ऑफ सेल वॉल अंदर बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, जो सबसे पहले सेल वॉल था उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ के टाइम पे। बाद में जो सेल आया उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है जी, तो मतलब जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, वो उसका विड्थ बढ़ता जा रहा है, उसमें और वॉल्स ऐड होते जा रहे हैं। एनी डाउट बेटा? हाँ, अभी दे देगी वो। आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग द मॉड्यूल्स टू द किड्स? नो ना? अननेसेसरी खुद को क्यों डिस्टर्ब करते हो चीज़ों में? जो फिलहाल इंपॉर्टेंट है वो समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? बुक आपको 10-10, 15-15 मिनट का ब्रेक क्यों दिया जाता है? कि जो भी बातचीत करनी है, जो भी एक्सचेंज करना है, खाना है पीना है, उसमें कर लो। 1 घंटे बैठे हो तो 1 घंटे यहाँ पे बैठो, कि घर जाओ तो इसको रिवाइज करने में केवल 5 मिनट लगे। अगर यहाँ पे ढंग से पढ़ के नहीं जाओगे तो इसी चीज़ को रिवाइज करने में 1 घंटा फिर लगेगा, वेस्ट होगा टाइम। अगर इसको यहाँ से ढंग से पढ़ के चलेगा तो घर पे रिवाइज करने में केवल 10 मिनट लगेगा, इसको 5 या 10 मिनट मैक्सिमम। तो बेटा अगर प्लांट यंग है, ठीक है, तो उसका विड्थ कम है। जब प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसके पास ग्रोथ हो रही है, विड्थ भी बढ़ती जा रही है, साथ साथ में नंबर ऑफ सेल वॉल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। आपको ये ऑरेंज पार्ट दिख रहा है? इट इज समथिंग विच इज कनेक्टिंग द प्लांट सेल्स। ठीक है, एडजेसेंट प्लांट सेल्स, एडजेसेंट प्लांट सेल्स, इसको कहते हैं बेटा हम मिडल लैमेला। This is made up of calcium and magnesium pectate. It is made up of calcium and magnesium pectate. आपको ये ब्लैक लाइनिंग दिख रही है? अब बात ये है कि सेल वॉल आ गया बीच में, बहुत सार इधर दिख रही है ब्लैक लाइनिंग। तो बेसिकली इसको भी फिलहाल ऐसा समझो कि ब्रिज की तरह है, जो कि इसके साइटोप्लाज्म, यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म होगा, राइट? कल पढ़ा था साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो ये एक सेल को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रही है, जंक्शन बना रही है बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। डेस्माटा मीन्स जंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जंक्शन है जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रही है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, क्योंकि बाहर बहुत सारे सेल वॉल आ गए हैं। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है आपको? एडजेसेंट सेल्स जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेला। ऑरेंज से दिख रहा है आपको। हायर प्लांट में सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है जी, अगर अंदर एक और सेल वाला आ गई ब्लू के अंदर तो उसको हम बोल देंगे टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? तो ये है आपका सेल वॉल इन प्लांट्स। हाँ जी बेटा, श्योर। so what is happening? Function, connection,
ये देखो, देखो ये सेल वॉल 1, ये सेल वॉल 2, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल को इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करना है डायरेक्टली। कनेक्ट करने के देयर इज अ जंक्शन कॉल्ड एज डेस्माटा कनेक्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। एक्सचेंज सीधे। ब्रिज क्यों बनता है? क्यों बनता है? मैंने यहाँ से साया तक ब्रिज बना दिया, कितना इजी हो जाएगा। जिनको साया पे पहुँचना है सीधे चल के चले गए, चीज़ें क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। जंक्शन, इट इज कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। टर्शियरी वॉल्स बेटा सेकेंडरी के अंदर होंगी, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो। प्लांट और थिक हो गया तो प्रेजेंट होंगी। उनका थिकनेस बढ़ रहा है ना बेटा। ग्रोथ कैसे होगी फिर? चौड़ा हो रहा है तो उसको एक रिजिडिटी ज़्यादा चाहिए, राइट। तो ज़्यादा रिजिडिटी कैसे मिलेगी? सेल वॉल इज प्रोवाइडिंग। उसके पास हमारी तरह स्केलेटल सिस्टम तो है नहीं, तो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल। क्लियर है ये चीज़ बेटा सबको? पक्का? ये बताओ, हमने हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक कुछ ऐसा पढ़ा है? अभी पढ़ा है क्लास में? नहीं ना, पिछली बार पढ़ा था? कब पढ़ा था? नहीं पढ़ा? बताओ आप। नहीं पढ़ा? सेल वॉल इन बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का नहीं पढ़ा था ना? इधर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीचे लिख लेते हैं। सोल्यूशन, अ सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, क्लियर है? एक सोल्यूशन के अंदर मैंने चीनी पानी बनाया तो उसके अंदर क्या है? चीनी है और पानी है। ऑब्वियसली पानी ज्यादा है, चीनी कम है। वन इज सॉल्वेंट विच इज डिजॉल्विंग, वन इज सॉल्यूट जिसको डिजॉल्व किया जा रहा है। क्लियर है बेटा? अब एवरीबडी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसलिए कह रही हूँ, यहाँ ध्यान दो। दिस इज अ सोल्यूशन, ओके, दिस इज अ सोल्यूशन, ओके, दिस इज, अरे this is one solution. Now I have kept my cell inside all the 3 solutions. ऑस्मोसिस पढ़ा है सबने? अभी पढ़ा ना हमने ऑस्मोसिस? कैसा मूवमेंट है? हायर से लोअर या लोअर से हायर? हायर से लोअर। अगर मैं कहती हूँ, एवरीबडी हियर, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे ये जो ए पार्ट है, दिस इज ए में the concentration of solvent is more in this solution as compared to my cell. I am repeating it again. मतलब यहाँ पे solvent is more as compared to this. कोई डाउट? सॉल्वेंट ज्यादा है, ऑटोमेटिकली क्या कम हो गया होगा? सल्यूट कम हो गया होगा। और ये वाला जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा? डाइल्यूटेड। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट किस तरफ होगा? मीडियम से सेल की तरफ या सेल से मीडियम की तरफ? कोई डाउट? मीडियम से सेल क्यों होगा? क्योंकि सॉल्वेंट इसके पास ज़्यादा था, इसके पास कम था। अब पानी सेल के अंदर आया, मैं सॉल्वेंट को पानी बोल रही हूँ ईजी करने के लिए, पानी सेल के अंदर आ गया। अब जब पानी सेल के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली प्लांट का, सॉरी, सेल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेल विल स्वेल अप, सेल विल स्वेल अप, मोटा हो गया। जब भी मम्मा रात को किशमिश पानी में भिगोती है तो क्या होता है? किशमिश इसके पास लेस सॉल्वेंट है, बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो पानी विल मूव इनसाइड द किशमिश एंड इट विल स्वेल अप। दिस इज द रीजन। आज जाके मम्मी को रीजन बताना, ये था रीजन, ठीक है जी।
जो भी भिगोता है, मम्मी पापा जो भी XYZ, उनको रीजन बताना, दिस इज द रीजन. सो व्हाट इज हैपनिंग, वाटर इज कमिंग इनसाइड द सेल, सो आई विल से क्या हो रहा है भाई, एंडोस्मोसिस हो रहा है. ठीक है, अभी लिखेंगे, ये चीज क्लियर है. तो इसको, इस सॉल्यूशन को, ये जो बाहर सॉल्यूशन है जिसमें सेल को रखा गया है, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे दैट द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपो में जब मैंने सेल को रखा, मेरा सेल मोटा हो गया, हिप्पो हो गया, ऐसे याद रख लेना. जब भी हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, वो हिप्पो ही होगा, वो मोटा ही होगा. सेल स्वेल अप. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, इसका उल्टा है. उल्टा है का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है कम और सल्यूट है ज्यादा एज कंपेयर टू माई सेल. तो ये क्या डाइल्यूटेड है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड. अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेंट का मूवमेंट किस तरफ, सेल से बाहर की तरफ, पानी बाहर चला गया, एक्सोस्मोसिस. और जब इसके बेचारे के पास से पानी बाहर चला गया तो क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. It will shrink, the cell will shrink. The solution is called as hypertonic solution. ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें किसी को, पक्का. नेक्स्ट, ये कब आया, येलो कब बना, ग्रीन कब बना, क्या? हाँ जी बेटा, बता रही हूँ इसका एग्जाम्पल. कभी बहुत देर तक एक सर्फ के पानी में अपना हाथ डाल के देखना, क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि किसी रिंकल सा ऐसे लग गया, एकदम श्रिंक सा हो गया. बहुत ही. कभी किसी को पिकल बनाते हुए देखा, बहुत सारा ऑयल डाला जाता है पिकल में, क्यों डाला जाता है ऐसा? या फिर कभी किस फिश खाते हो तो देखा जाता है उसके ऊपर सॉल्ट डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए. इट, तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन बेटा ये है, व्हाट इज हैपनिंग इफ वी आर एडिंग टू मच सॉल्ट, if any bacteria is present inside that, the solution will become hypertonic for it, and what will happen, exosmosis will take place in the bacteria and ultimately it will die. The reason, bacteria. isotonic solution बहुत ही सही है, इससे अच्छा कोई solution ही नहीं है. हाँ जी, दोनों सेम होते हैं, मतलब ये नहीं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम है. इसका मतलब है कि जितना सॉल्वेंट सेल में उतना ही सॉल्वेंट मीडियम में, जितना सॉल्यूट सेल में उतना ही सॉल्यूट मीडियम में. तो मूवमेंट किस तरफ, मूवमेंट होगी या नहीं होगी, मूवमेंट होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी. तो देखने, जैसे मैंने तुझको 10 रुपये दिए, मैंने कहा 10 रुपये वापस कर, 10 रुपये दिए वापस कर, क्या कोई चेंज आया मनी का? या फिर तूने मुझे 10 रुपये, आई गेव यू 10 रुपीज़ एंड यू गेव मी 10 रुपीज़ बैक, क्या मेरे पास कुछ अमाउंट इंक्रीज हुआ? सामने वाले को क्या लगेगा कि कोई मूवमेंट नहीं हुई, बट एक्सचेंज हुआ था, राइट? सिमिलरली एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, बट नो नेट मूवमेंट. सामने वाले को देख के लगेगा कि कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं. आइसो मीन्स सेम. एम आई क्लियर to everybody? Pakka? If a cell is placed in hypotonic solution, what will happen? It will swell up. If a cell is placed in hypertonic solution, shrink. If it is placed in isotonic solution, no net movement, no change in the size. Jot it down. 3 types of solution: hyper, hypo, iso. Movement. So basically movement, we were talking about movement, right? How movement is taking place across the cell membrane. Hence, हाँ जी बेटा. Sure. Hyper means in this solution solute is more, ठीक है, solvent is less. So osmosis, मैंने बहुत
बार बोला था ऑस्मोसिस जस्ट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आर सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, वी नो दैट. So what is happening, solvent is more inside the cell because बाहर तो कम है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा. इससे पानी निकल गया तो श्रिंक कर जाएगा. क्लियर है एवरीबॉडी? आप बताओ क्या लगता है? But obvious because water is entering inside the cell, endosmosis, water is leaving the cell, exosmosis. जो भी बात है सेल की टर्म्स में कर रहे हैं, बस ये जो सोल्यूशन बोल रहे हैं हाइपर और हाइपो, ये हम सोल्यूशन की टर्म में वर्ड यूज कर रहे हैं. अभी बताया, बताओ क्या लगता है? एनीबॉडी? आइसोटोनिक, व्हाट इज आइसोटोनिक? बताओ. Or I can say the concentration of solute and solvent is same both in the cell and the solution. तीन तरीके के हैं, हाइपर, हाइपो, आइसो. क्लियर है पक्का से? ना ना ना, मैं चेंज करूंगी ही नहीं भाई. ओ सॉरी, डन. चलिए. So what is happening beta, if we are keeping a cell in hypotonic solution, it will swell. हाइपोटोनिक में रखा, यहाँ पहले यहाँ समझो, हाइपोटोनिक में रखा तो दो तरीके के सेल हैं, एनिमल और प्लांट. एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, एनिमल सेल विल बर्स्ट बट प्लांट सेल विल नॉट. व्हाई? हाँ, इसके पास एक रिजिड लेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है बर्स्ट होने से. कौन सी? सेल वॉल. तो इट विल नॉट बर्स्ट. When I placed in hypertonic solution, it will shrink. इसके साथ हो, इधर बेटा ध्यान दे लो, बस छापो छपाई नहीं करना है. हाँ, फर्स्ट होगा तो चेंज हो ही जाएगा. इसके पास क्या हो रहा है? प्लाज्मोलाइसिस. अभी होता क्या है इधर समझेंगे सब लोग. इसके पास सेल वॉल है, राइट? जब मैंने इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो पानी बाहर निकलेगा या पानी अंदर रहेगा? बाहर निकलेगा, राइट? तो इससे पानी बाहर निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया. ये सेल वॉल तो भाई रिजिड है, कोई चेंज नहीं आ रहा. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ा है, इट इज फोल्डेबल, पढ़ा है, कैन बी ब्रोकन, पढ़ा था ना. तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा? इसके सेल वॉल से डिटैच हो जाता है क्योंकि श्रिंक हो गया. बड़ा था तो पूरा पानी भरा हुआ था, साइज ऐसे था. जब पानी बाहर निकल गया तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? सेल वॉल से डिटैच होने लग गया, दूर आने लग गया. इसी को कहा गया प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मा का लाइसिस, टूटना. तो अगर आप देखो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट of the cell through exosmosis and there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. मतलब जो कंटेंट था, जो सेल मेम्ब्रेन था, वो इससे दूर आने लग गया. इसी को कहते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस. तो ये प्लाज्मोलाइसिस आपको किस में दिखेगा? प्लांट में, एनिमल में नहीं. क्यों? सेल वॉल ही नहीं है तो दूर क्या जाएगा? क्लियर है? ये चीज क्लियर है? You will get the slides. The concept is clear. You will get the slide. No worries. अब मुझे एक बात
हाँ जी बेटा, this thing, when animal cell is placed in hypotonic solution it will burst, but plant cell up to a limit it will not because it has cell wall. ठीक है, if animal cell is placed in hypertonic solution it will shrink, a plant cell will plasmolized. ठीक है, नाउ एक सिंपल सी बात बताओ, पढ़ते आयो बचपन से, हाउ डू वी नो वट वी हैव टू डू, हाउ डू वी नो, मुझे क्या करना है, वी हैव ब्रेन राइट, हाउ डू अ सेल नो वट इट हैज टू डू, नो इट हैज जेनेटिक मटेरियल, कल भी पढ़ा था ना, बताया था ना, इट हैज जेनेटिक मटेरियल, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। हम बात कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म की जिनके पास जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए की फॉर्म में। इसमें जब हम बात, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस एक बार आपको गो थ्रू करा रही हूँ, इसको जब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तो मैंने आपको कल भी बताया था, जेनेटिक मटेरियल या तो बस ऐसे प्रेजेंट है विदाउट एनी कवरिंग, ठीक है, या तो जेनेटिक मटेरियल को एक अलग से कवरिंग में प्रोटेक्ट कर दिया गया है। जब अलग से प्रोटेक्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर अपना, यहाँ इसमें मेरे पास एक ही रूम है लेट अस अज्यूम, और मैंने यहीं पे अपना गैस और यूटेंसिल्स रख दिए, तो मैं इसको अलग से किचन तो बोल नहीं पाऊंगी, अगर मैंने एक बाउंड्री बना दी तो एक अलग से किचन हो गया, राइट। सेम उसी तरीके से इसने क्या किया, एक अलग से स्ट्रक्चर बना दिया, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और यहाँ पे हमारे पास दो अलग तरीके के सेल आ गए, एक जिनका जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, एक जिनका जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय सम मेम्ब्रेन। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, ओके, ठीक है बेटा। और एक चीज और पढ़ी थी हमने, साइटोप्लाज्म, दो चीजें, जेली इज साइटोसोल, उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर इज सेल ऑर्गेनल्स। तो जो पढ़ा है वो रिवाइज करके आना, और इसका आइडिया आई थिंक एवरीबडी हैज़, कोई अगर नहीं है, जिसको अगर नहीं पता है, सो दिस इज अ QR कोड, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड वांट टू enroll with PW, the person can scan this QR code and you will get some benefits. Thank you. Any doubts? हाँ, बता। हाँ